welcome to the channel. This is Astha. I hope you all are doing great. Guys, in today's video, we'll discuss about the TCS interview preparation. Yes, guys, this is the part 1. And in this particular video, I'm going to give you all the important and very informative information that will going to help you to crack TCS. I'm sure you all started your preparation to crack TCS, right? So many of you have received your interview selection mail and most of you are waiting for your results, right? So guys, जैसे ही आपको TCS NQT का result मिल चुका है and you know कि आपका interview scheduled होगा. So from when? Very soon, from 14th of September, TCS will going to start scheduling your interviews. But guys, I want you all to be prepared 100% for the interview, because TCS will going to alert you, will going to send you mail just 48 hours before your interview. Means आज आपको mail आएगा कि maybe you have your interview by tomorrow or day after tomorrow. So after receiving the interview schedule, you will not going to have much time to do your final preparation. Okay, so this video will going to be very helpful if you're preparing for TCS interviews, and if you want to crack this interview. I am assuring you, if you follow all my tips, if you follow all my videos that I'm going to share with you in this series of TCS interview preparation, you will going to crack TCS interviews. ये मेरा assurance है आपको. अगर आप सभी tips follow करते हो, सभी questions जो मैं आपसे share करने वाली हूँ, I'm going to share the complete question bank of TCS interviews. कैसे कैसे questions होते हैं, particular languages से कैसे questions होते हैं, all HR questions, technical questions, all tips how you can impress your interviewer, how you can make your virtual interview more impactful. All tips I'm going to share with you people in this particular series. Yes, series ka first part hai guys. You do not have to miss this video. Do not skip this video if you really want to crack TCS company. Okay, let's start with the video, guys. So here in this particular video, we're going to discuss about both the roles, digital and ninja roles, guys, because both the roles के लिए freshers की hiring हो रही है. They're going to hire freshers for ninja and digital दोनों ही roles के लिए. But last जो experience है TCS recruitment का, guys, they mostly recruit for digital roles. Okay, so I want all of you, if you are going for digital interview, do not miss that opportunity. That's a very good position with TCS digital, because they offer really good package also for digital role. Okay, so you have to give your 100%. क्यों? क्योंकि TCS exam में तो उन्होंने काफी सारे candidates को select कर लिया है, because nowadays everything is going online, and online काफी सारा cheating भी होता है. We all are aware about that thing through Telegram, through online. Means candidates are doing whatever they can to just get selection in that exam, right? So selection mail तो आपको आ गया है, but the main जो game start हुआ है guys, वो interviews में होगा. TCS will going to judge you in your interviews only. So you have to be take it very seriously, and you need to prepare yourself mentally also, physically also, and you need to gather all the required information to crack your interview. Okay, I don't want just because of silly mistakes you're going to miss this opportunity. So let's start with the video, guys. Here we'll discuss about both the roles, digital and ninja. Along with that, I'm going to give you 100% sure tips how you can crack your interviews. Why I'm telling you this thing, guys, because I'm an HR by profession. I have more than 5 years of experience into recruitment, and I can tell you how you need to present yourself during the interview so that you will be able to crack that interview. Okay, along with that, I'm going to give you interview preparation, how resume will going to be very important in TCS. That also I'm going to discuss in this video, and what will be asked. Okay, because you have your 4 years of degree with you, right? आपने अपना technical complete किया हुआ है, BE BTech किया हुआ है, या post graduation से आ रहे हैं, जो भी आपने graduation किया हुआ है, there are vast topics that can be asked in interview. Okay, and in IT industry or in any interview, any job interview, that completely depends on your interviewer, how and which topics they're going to ask you. Okay, so it's very clear, but here I'm going to discuss all those topics that are very frequently asked to the freshers in TCS company. ठीक है, तो वो सभी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है TCS इंटरव्यूज में, and how you need to answer those questions. All details I'm going to discuss about. Okay, along with that, I'm going to give you most important and frequently asked HR interview questions in this particular video. 20-25 questions मैं आपसे डिस्कस करूंगी जो HR questions होते हैं, जो very important होते हैं. ठीक है, because guys, I am telling you again and giving you this tip, because in TCS company टेक्निकल इंटरव्यूज जितने इंपॉर्टेंट होते हैं उतने ही HR इंटरव्यूज भी होते हैं. सो यू नीड टू गिव equal
focus on both the interviews, technical as well as HR interview. Okay, you need to focus on both the questions, HR questions and technical questions. Because what happens, technical तो आप clear कर लेते हैं, but most of the time HR questions जो आपको बहुत easy लगते हैं कि yes HR में तो क्या पूछेंगे हम बता देंगे, guys वही questions में आप लोग फंस जाते हैं. and HR जो questions आपसे करते हैं वो क्वेश्चंस आपके माइंड को चेक करने के लिए किए जाते हैं. दे जस्ट चेक योर पर्सनैलिटी, योर थॉट प्रोसेस कि कंपनी को ज्वाइन करने के पीछे आपका क्या पर्पस है, किस इंटेंशन से आप कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, एंड आप इतने कैपेबल हो कि नहीं कि आप इस कंपनी में वर्क कर पाओ. ये चीजें चेक करने के लिए दे यूज टू आस्क यू HR क्वेश्चंस. मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट यू नीड टू frame your answer accordingly that you'll be able to impress your interviewer and they will decide that yes you are the right candidate and they're going to select you for that position. Okay, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो गाइज बी विथ मी टिल द एंड. मे बी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए बट आई कैन श्योर यू वर्थ है एक बार इस वीडियो को कंप्लीटली देखना. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू आप इसके बाकी सारे पार्ट्स भी जरूर से देखोगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइज. सो हियर एज यू कैन सी, first we'll discuss about digital and ninja roles, then 100% श्योर टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ टू क्रैक योर इंटरव्यूज. एज यू ऑल नो आपके पास इंटरव्यू सिलेक्शन के मेल आ चुके हैं कि आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो चुका है. ओके, नाउ यू नीड टू डू योर इंटरव्यू प्रिपरेशन. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन आई वांट टू गिव यू सम टिप्स कि क्या क्या आपको एडवांस में कर लेना है सो दैट आपके इंटरव्यू में मैस क्रिएट ना हो. ओके, आपको उस दिन कोई टेंशन ना रहे. सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू प्रिपेयर सम, कुछ चीजें ऐसी हैं गाइस जो आपको एडवांस से प्रिपेयर करके रखनी है. डोंट वेट फॉर द इंटरव्यू शेड्यूल मेल कि मेरा कल इंटरव्यू है या मेरा 30th को इंटरव्यू, मे बी आपका 14th को इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए या फिर आपका 30th सितंबर को इंटरव्यू शेड्यूल हो. टोटली डिपेंड्स ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड देयर प्रोसेस, हाउ दे आर प्रोसीडिंग. ओके, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. ओके, जस्ट ऐसे प्रिपेयर हो जाओ कि बस हमारा 14th को ही इंटरव्यू होने वाला है. सो फॉर दैट आपको क्या करना है, यू नीड टू बी रेडी विथ वन योर फॉर्मल ड्रेस. आपका कोई भी एक फॉर्मल ड्रेस आप निकाल के रखो, रेडी करके रखो. जैसे ही आपके पास इंटरव्यू का मेल आता है आप उस ड्रेस को पहनकर इंटरव्यू दे पाओ. इस तरह से अपने ड्रेस को बिल्कुल आयरन वायरन करके नीट एंड क्लीन फॉर्मल ड्रेस को रख लो. ठीक है, सो दैट आपको लास्ट मोमेंट पर हरी ना हो. सेकंड चीज, बी रेडी विथ योर कनेक्टिविटी. इंटरनेट कनेक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए. बिकॉज गाइज मेरे सो मैनी कैंडिडेट्स हैं जो कि दे आर फेसिंग सम टेक्निकल इश्यूज ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज उनके इंटरव्यूज रिशेड्यूल करने पड़े, कैंसिल हो गए, ठीक से उनकी आवाज नहीं जा रही है, उनका फेस नहीं दिख रहा है. मतलब इस तरह की बहुत सारी ऐसी टेक्निकल रीजंस आए हैं कैंडिडेट्स को और उन्होंने अपनी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस किया है. बिकॉज एक बार अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया गाइस तो फिर अगर वो कैंसिल होता है बिकॉज ऑफ एनी टेक्निकल रीजन और एनी अदर रीजन, उसे रिशेड्यूल करवाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लकी कैंडिडेट्स होते हैं जिनका इंटरव्यू रिशेड्यूल हो जाता है, बट सो मेनी टाइम्स क्या होता है रिशेड्यूल हो ही नहीं पाता है. सो इस तरह की चीजों में आप ना फंसो. आई वांट दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द स्टेप कि टू रेडी विथ ऑल योर टेक्निकलिटीज. ओके, जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपको साथ रेडी रहना है. लैपटॉप अरेंज करके रखो, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपरली चेक करके रखो. ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स उसमें आती है मेल में वो सभी आप चेक करके रखो एडवांस में कि हाँ मेरी सभी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है. आपका वेब कैम, आपका हेडसेट अगर आप अरेंज कर सकते हो दैट विल बी ग्रेट हियर. बिकॉज हेडसेट से क्या होता है ना कि आपको कोई बाहर की वॉइस नहीं आती है एंड आपको क्लियरली क्वेश्चन समझ में आते हैं. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप क्वेश्चन समझ नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आप गलत आंसर देते हो, राइट. एंड क्योंकि हम फ्रेशर हैं हम हेजिटेट हो जाते हैं, हम क्वेश्चन रिपीट नहीं करवा पाते हैं. It happens with freshers. I'm telling you this thing because I'm an HR. I used to handle so many candidates on daily basis. Recruitment में हूँ मैं, तो मुझे पता है एज अ फ्रेशर आप हेजिटेशन में आकर क्वेश्चंस रिपीट करने के लिए नहीं बोलते हो एंड आप कुछ गलत सुनते हो और गलत आंसर करते हो, राइट. उससे आपके मार्क्स रिजेक्ट हो जाते हैं. सो गाइस आई डोंट वांट यू टू डू दैट थिंग. सो अपना हेडसेट आप एक अरेंज कर सकते हो, फ्रेंड से ले लो, किसी से भी आप अरेंज करवा लो. हेडसेट, वेबकैम, ऐसा बैकग्राउंड रखो अपने घर में जो बिल्कुल नॉइस फ्री हो कि बाहर की कोई वॉइस उसमें ना आ रही हो. आपको जितना ज्यादा नॉइस फ्री एटमॉस्फेयर रहेगा आपके घर का उतना इजीली आप इंटरव्यू को अटेंड कर पाओगे. आफ्टर दैट आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए एकदम क्लियर रखो बैकग्राउंड को सो दैट कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो. इंटरव्यूअर भी जब आपको देखे तो ही शुड बी प्लीज्ड विद दैट. ओके, अलॉन्ग विद दैट कुछ फिजिकल बॉडी अपीयरेंस होता है आपका, हाउ यू नीड टू बी फिजिकली अपीयर फॉर दैट इंटरव्यू. बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी मैं नेक्स्ट इंटरव्यू, हाउ यू नीड टू मेक योर वर्चुअल इंटरव्यू इम्पैक्टफुल. इस पर एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, कैसे आपको आई कांटेक्ट करना है, कैसे आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, कैसे आपको अपने इंटरव्यू को मोर इम्पैक्टफुल बनाना है. ओके, इसके बाद गाइज यू नीड टू बी रेडी विथ योर रेज्यूमे. अब आप बोलोगे हमने रेज्यूमे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. अगर कर दिया है एंड इफ यू गेट अ चांस टू री अपलोड योर रेज्यूमे, प्लीज मेक श्योर TCS में रेज्यूमे का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ओके,
50% वेटेज होता है आपके रेज्यूमे का आपके सिलेक्शन में जो रोल प्ले करता है. सो गाइज आपको अपना रेज्यूमे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, एक प्रोफेशनल रेज्यूमे प्रिपेयर करना है. यू नीड टू मेंशन all the technical details that you know, internship, certificate courses, trainings, projects, whatever you know, जितना भी नॉलेज आपको है जिसमें आप 100% श्योर हो कि मैंने ये किया है एंड आई हैव गुड नॉलेज ऑफ दिस, वो आपको रेज्यूमे में मेंशन करना है. रेज्यूमे को प्रोफेशनली अपडेट करना है. ओके. एंड अच्छे से रेज्यूमे को अपडेट करके जस्ट ट्राई कि कोई आपको एक्सपर्ट से वेरिफिकेशन मिल पाए. ओके. कोई भी ऐसा एक्सपर्ट हो, आपके सीनियर्स हो, आपके कॉलेज में आपके जो मेंटर्स हैं, या फिर आपके कोई कलीग्स हैं जो आईटी कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, ऐसे किसी को आप ढूंढिए, उनसे कहिए कि मेरा रेज्यूमे एक बार वेरीफाई कर दो. उन्हें एक बार रेज्यूमे चेक जरूर करवाओ, बिकॉज आप फ्रेशर हो एंड फ्रेशर्स को जो आपको गूगल पर मिलता है आप वो डाउनलोड कर लेते हो, उसी फॉर्मेट में आप अपना रेज्यूमे प्रिपेयर कर लेते हो. बट गाइज नाउ डेज इन आईटी कंपनीज और इन एनी गुड एमएनसी कंपनी, रेज्यूमे प्ले अ रियली गुड रोल. If you want, I can also verify your resume. If you want, you can do one thing. I'll give you my mail ID in the description box. You can share your copy of resume with me. I'll verify that. And if any changes required, I'll let you know on the mail itself. Okay. So guys, definitely इसे करना. मैंने इन्फोसिस कंपनी के जब रिक्रूटमेंट हो रहे थे, हमारी कंपनी के बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे चैनल के जो कि इन्फोसिस में प्लेस्ड हुए हैं. उनके मॉक इंटरव्यूज मैंने लिए हुए हैं, उनके रेज्यूमे मैंने अपडेट करवाए हैं. सो गाइज आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, नो प्रॉब्लम इन दैट. जस्ट आप मुझे एक बार बता देना. ठीक है. तो एक बार अपना जो रेज्यूमे है उसे अच्छे से अपडेट कर लो. और अगर आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हो और आपको री अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इन दैट केस यू कैन डू वन थिंग. आप अपने रेज्यूमे को गूगल ड्राइव में सेव कर दो एंड उस लिंक को रेडी रखो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. अगर बहुत ज्यादा चेंजेस हैं आपके रेज्यूमे में, आप इंटरव्यूअर से रिक्वेस्ट करके उनसे वो गूगल ड्राइव लिंक भी शेयर कर सकते हो कि यस दिस इज माई अपडेटेड रेज्यूम. ओके. अगर आपने बहुत कुछ किया है बाद में एंड चेंजेस हुए आपके रेज्यूमे में, इन दैट कंडीशन यू कैन डू दैट थिंग. एक और अल्टरनेटिव है कि अगर ज्यादा चेंजेस हैं आपके रेज्यूमे में, आपने कोई इंटर्नशिप किया है, आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं आफ्टर सबमिटिंग योर रेज्यूमे, व्हाट यू कैन डू at the time of introduction answer, when the interviewer will ask you tell me about yourself or introduce yourself or whatever question they ask you related to this, you can tell them in brief that yes this are the updations जो मैंने अपने resume में mention नहीं किया है, but after that I have done all these things. So that is very very important. Okay. So ये चीज आप ध्यान रखना. Then guys, both technical and HR interviews are equally important. As I told you, you need to focus on both the questions, HR as well as technical questions. Prepare questions from both technical and HR rounds. Dressed up professionally for the interview. Be confident. Guys, confidence is the key to crack any interview. I can tell you that thing. अगर आप में confidence है, आपको थोड़ा सा भी knowledge है और वो आप present करते हो, तो that will be presentable and interviewer उसे positive लेंगे. But आपको बहुत कुछ आता है, but at the time of interview you are nervous, you're not able to share your thoughts properly, you are not able to share your information properly. That will give a negative impact. Okay. So be confident. कैसे आपको confident दिखना है इंटरव्यू में, कैसे आपको शो करना है कि yes I understand, I completely understand you all are fresher, and if this is your first or second interview you must be feeling nervous at the time of interview. हम सभी इस दौर से गुजरे हैं, so I can completely understand that thing. And because मैं daily interviews लेती हूँ, so I'm sure freshers में वो एक health प्रॉब्लम होती है, नर्वसनेस होती है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है. सो गाइज डोंट वरी अबाउट दैट. आई गिव यू सम टिप्स कि हाउ यू कैन शो कि यस आई एम कॉन्फिडेंट. भले आप अंदर से नर्वस हो, बट आपको वहां शो करना है दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अटेंड दिस इंटरव्यू. ओके. कैसे करना है उसका डिटेल वीडियो आई शेयर विथ यू वेरी सून. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that you'll get the notification from my side. Okay. So you need to be confident guys, because confidence is the key to crack any interview. Okay. Then be polite. That is very very important. I saw so many candidates who are like become argumentative during the interview, or they want to show that yes I have knowledge, I know the answer, means they are like become a little bit argumentative. So you don't have to go in that way. Okay. You need to be polite at the interview. जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, they are the more experienced people. Okay. They are the experts from their domain. So guys, you need to be polite in front of them. You want job. ओके. ये जॉब आपका फोकस है, आपको वहां पर प्लेस्ड होना है, तो यू नीड टू बी पोलाइट. मे बी आपका नेचर कैसा है, आपका आर्गुमेंटेटिव नेचर है, आपका नेचर पोलाइटनेस में नहीं आता है, आपके चेहरे पे स्माइल नहीं रहती है, या जो भी आपका इशू है, I can completely understand. But at the time of interview, this is the professional life, guys. You all have to keep a smile on your face during the interview. That is very very important. Okay. आप नर्वस हो तो भी आपको एक स्माइल रखनी है to give the positive impact. Okay. That will give positive impact and create positive atmosphere around you. And that will link you with your interviewer. Okay. Because आप किसी अनजान से भी मिलते हो, स्ट्रेंजर से भी मिलते हो, and वो आपको अगर एक स्लाइट सा स्माइल दे देता है, so it becomes softer. Like yes,
you also sometimes give back them smile, right? So ये एक बहुत जरूरी है, आपको एक politeness रखनी है अपने अंदर. You need to keep a slight smile on your face, भले आपको आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, you need to be patient at that time. आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ काम करना है. अगर आपको आंसर नहीं आता है, no problem, because you all are fresher. So it's completely clear and everybody understand this thing. You would not be able to answer all the questions during the interview. आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, it's a request, please don't give fake answers, okay? Don't try to create stories and give answers in any way, okay? If you don't know the correct answer, please be politely tell them, sir, I don't know the answer, I'll be prepared afterwards, okay? I'll check afterwards. इस तरह से आप उन्हें politely क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, so that आपका टाइम सेव हो सके. Because guys, these are MNC interviews and you all know so many candidates applied for the positions, right? And डेली के इंटरव्यूअर्स को बहुत सारे इंटरव्यूज लेने होते हैं, so उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके फेक स्टोरीज को सुने, okay? That will irritate the interviewer. उनके पास एक स्लॉट होता है, they have 19, 20, 25 मिनट्स का एक स्लॉट होता है जिसमें उन्हें अपना इंटरव्यू कंप्लीट करना होता है. So guys, you have to be punctual with that time, okay? You have to give importance to the time of interviewer as well. If you don't know the answer, politely tell them, sir, I don't know the answer, I'll check it afterwards, okay? इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, इंटरव्यूअर आपसे कोई और क्वेश्चन करेंगे and maybe उसका आंसर आपको बेहतर आता. So guys, just keep all these tips in your mind and follow, okay? Then give your answers short, concise and up to the mark. जो क्वेश्चन आपसे किया गया guys, just उसी का आंसर दो. स्टोरीज क्रिएट मत करो, नहीं आता है नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आप फेक स्टोरीज दोगे, टाइम वेस्ट करोगे इंटरव्यूअर का, तो दैट विल गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट हियर, okay? Then don't give fake answers, as I told you already. Focus on your communication skills, that is very very important. If you want to join any MNC company guys, knowledge आपको है, टेक्निकल नॉलेज है, सभी नॉलेज है आपको, बट अगर आप उसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप HR तक अपनी बात नहीं रख पा रहे हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, okay? You need to focus on your communication skill. Please try to avoid grammatical mistakes. I'm not telling कि you should have excellent communication. Maybe आपके पास प्रॉब्लम हो, आपका कम्युनिकेशन एक्सीलेंट ना हो, बट इतना होना चाहिए कि आप जो आंसर दे रहे हो अंडरस्टैंड हो, वो HR तक जा सके, HR उस आंसर को समझ सके. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, बिकॉज नाउ यू आर coming to a professional word, so try to avoid all this, okay? Nervous नहीं होना है and confidently अपने आंसर्स देने हैं. Next we'll discuss about what will be asked in the interview. Very very important topic guys, because हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, and totally dependent on the interview whatever they want to ask you. But जब हम बात करते हैं TCS की या किसी भी IT कंपनी की, मोस्टली आस्क्ड टॉपिक्स जो होते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. यू नीड टू प्रिपेयर योर रेज्यूमे फर्स्ट एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, बिकॉज रेज्यूमे इज द ओनली थिंग दैट विल डिस्क्राइब यू. क्या आपके इंटरव्यूअर आपको नहीं जानते हैं, दे डोंट नो यू पर्सनली, आप जो रेज्यूमे में मेंशन कर रहे हो दैट इज द ओनली वे जिससे कि इंटरव्यूअर आपके बारे में जान सकता है, राइट? एंड during the interview guys, you don't have to tell about yourself, you need to tell them what are the skills you are having in you that will going to helpful for their company, okay? That is that they want to know. Actually HR, मैं खुद HR हूँ guys, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर वो कौन से स्किल्स हैं, वो कौन से पोटेंशियल्स हैं जो हमारी जॉब रोल को सूट करते हैं. That's the only thing, that's the only purpose of any interview, to judge that thing कि जो स्किल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, जो पोटेंशियल हमें चाहिए इस जॉब रोल के लिए, वो आप में है या नहीं, वो क्वालिटीज आप में है या नहीं. सो इट्स नॉट अबाउट यू, योर फैमिली, योर बैकग्राउंड, नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स ओनली अबाउट द स्किल्स, अबाउट द पोटेंशियल, अबाउट द नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट जॉब रोल, ओके? सो आपको वही यहाँ पर मेंशन करना है. तो रेज्यूमे में आप जो भी मेंशन कर रहे हो, you need to be aware about that. Technical words, hobbies, achievements, skills, internships, certificates, projects, जो भी आपने मेंशन किया है, be prepared with that, okay? So first thing, whatever you mention in your resume, that will going to be asked. Then prepare your projects, very very important for TCS company or any IT company. जो projects आपने किए हुए in your college, minor, major, whatever you're mentioning in your resume, be prepared with all the technical terms, their applications, the problems you faced during the project, how you overcame that project, what was your role in that project. तो ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए एंड यू हैव टू प्रिपेयर विद दोस आंसर्स. इस पर डिटेल वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा मेरे चैनल पर, प्रोजेक्ट एंड उस रिलेटेड क्वेश्चंस एंड उनको आपको कैसे आंसर करना है. Next, basics of programming languages, because you are entering into the IT world guys, so you have to be aware about the programming languages. Very common and simple law, ठीक है? अगर आप IT कंपनीज को एंटर कर रहे हो, IT रोल्स में जाना चाहते हो, you should be aware about any one programming language nicely. Either it's C, C++, Python, Java, OOPS,
data structure, algorithm, all are the very important topics that you need to be aware about. Okay, all basic questions will going to be asked. कोई भी question आपसे हो सकता है, and इस पर भी detailed videos आपको कल ही मिल जाएंगे. मैं ट्राई करूंगी कल ही सारे वीडियोस में आपसे शेयर कर लूं, सो दैट आप प्रिपेयर कर पाओ. सी के मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं, सी प्लस प्लस के, पाइथन के मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं इंटरव्यूज में, जावा के मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस क्या होते हैं. मैं सभी पर एक डिफरेंट वीडियोस बनाकर सेपरेट वीडियोस में डिटेल में शेयर करूंगी. मोस्ट frequently asked and most important questions coming in interviews in TCS from all particular languages. Okay, so be stay tuned with us. Okay, then basics of computer science, because if you belong to computer science branch, then for sure they're going to ask you questions from computer science. And if you belong to any other branch like mechanical, electronics, electrical, any other branch, they're going to ask you basics questions from your core branch. But that totally depends on the interviewer. फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो एंड आपका इंटरव्यूअर भी इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, so at that time they maybe they're going to ask you more questions from your electronic branch. Okay, because they have that knowledge, right? So totally depends on the interviewer, but you have to be prepared. We can't take any risk, right? हम कुछ भी risk नहीं ले सकते हैं, and nobody is 100% sure किस तरह के questions आएंगे. So you have to be prepared, right? Then be prepared with your internship, projects, training, certificate courses. ये सब कुछ आपको prepare करके रखना है जो भी आपने resume में mention किया हुआ है. Okay, देन रेज्यूमे इंपॉर्टेंस. यस गाइस, टीसीएस में रेज्यूमे बहुत वाइटल रोल प्ले करता है इन योर सिलेक्शन प्रोसेस. ओके, सो प्लीज अपने रेज्यूमे को अच्छे से अपडेट करके रखो. जो भी अपडेशन है एचआर को, इंटरव्यूअर को बताओ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. ट्राई टू इंक्लूड दोस टर्म्स इन योर इंट्रोडक्शन आंसर कि यस, आफ्टर submitting my resume, I have done this courses, I have done this certification course, I have done this training course, so that will be given impact. Yes, you are having good knowledge, right? Then be ready with your updated and experts verified resume. Okay, try कि अपने resume को आप किसी expert से verify करवा लो. कोई भी mistake उसमें होती है, कोई changes करने होते हैं to make that resume more impressive, वो आपको बता देंगे, right? तो आप उसको update कर पाओगे. Then prepare all the details you mentioned in your resume, very important. Then be aware of all the technical words. Most of the time क्या होता है, freshers क्या करते हैं, just to put कि हाँ हमारा resume impressful होना चाहिए, HR को impress करना चाहिए, बहुत सारी terms डाल देते हैं. मुझे मशीन लर्निंग आता है, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग का नॉलेज है, मुझे एजाइल मेथोडोलॉजी मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, या मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, या मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है. गाइस, आप डाल रहे, आप सब कुछ डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स योर रेज्यूमे, राइट? आप जो उसमें लिखोगे दैट इज योर थिंग कि आपने क्या लिखा है. बट अगर आप लिख रहे हो तो आपको आना चाहिए. सिंपल सा रूल है कि आप रेज्यूमे में जो भी लिख रहे हो वो आपको आना चाहिए. सो गाइस, वही लिखो जो आपको आता है, बिकॉज इंटरव्यूअर विल गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग फ्रॉम योर रेज्यूमे. सो जो टर्म्स आप उसमें मेंशन कर रहे हो, व्हाटएवर, भले वो आप स्किल्स में क्यों ना मेंशन कर रहे हो, आप हॉबीज में क्यों ना मेंशन कर रहे हो, आप अचीवमेंट्स में क्यों नहीं डाल रहे हो, आप जो भी लिख रहे हो आपको वो चीज पता होनी चाहिए. दैट इज द ओनली रूल टू क्रैक एनी इंटरव्यू. ठीक है, तो रेज्यूमे को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. डोंट फॉरगेट दैट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो आपके रेज्यूमे से ही होते हैं. ओके, सो व्हाटएवर यू आर मेंशनिंग आपको वो पता होना चाहिए. Next thing, guys, most important HR interview questions. So here I'm sharing few most frequently asked and most repeatedly asked HR questions with you people. ऐसा ही एक डिटेल वीडियो में आपसे लेटर ऑन शेयर करूंगी जिसमें आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चंस. ओके, अभी हम सिर्फ सैंपल क्वेश्चंस आपसे शेयर कर रहे हैं. इन माय नेक्स्ट वीडियोस आई एम ट्राइंग टू गिव यू आंसर्स एज वेल. So guys, first and the most important question in any technical interview or HR interview, tell me about yourself. Give your introduction, introduce yourself, whatever is the way of asking this question, but the purpose of asking this question is only that the interviewer want to know what are their skills, what are the important things that you want to mention. Okay, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंटरव्यूअर को जानना जरूरी है एंड जो आप उन्हें बताना चाहते हो. सो हियर द इंटरव्यूअर इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप मुझे बताओ मैं आपसे क्या पूछूं. It's a very simple logic, guys. If I have your resume in my hands, I can read all about yourself. आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी एज, आपका कॉलेज, आपके परसेंटेज, मैं सब पढ़ सकती हूँ. I have your resume with me, right? But still I'm asking you, tell me about yourself. So what is the intention behind that question? The only intention is that I want to know what are important things that will going to help my company that you have. ठीक है, आप में वो कौन सी बातें हैं, आप में वो कौन से स्किल्स हैं, आप में वो कौन से पोटेंशियल हैं जो मेरे जॉब रोल को सूट करते हैं एंड मेरी कंपनी को उससे हेल्प मिलने वाली है. आप मुझे बताओ मैं आपसे क्या पूछूं.
ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप मुझे बताओ मैं आपसे क्या क्वेश्चंस करूं। ठीक है, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना होता है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत लाइटली लेते हैं, सिर्फ अपना नाम अपना एड्रेस बताते हैं, अपनी फैमिली में कौन कौन है ये बताते हैं, मेरे पापा क्या करते हैं, मेरी मम्मी क्या करती है, मेरा भाई क्या करता है, मेरी बहन क्या करती है। नो गाइज, इस क्वेश्चन का ये मीनिंग नहीं होता है। यू नीड टू गिव योर आंसर वेरी शॉर्टली, कंसाइसली, बट इस तरह से देना है कि आपके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उन्हें पता चल सके। लाइक यू नीड टू मेंशन योर परसेंटेजेस, ओके, जो भी अचीवमेंट्स है वो आपको मेंशन करनी है, जो स्किल्स हैं वो मेंशन करनी है, प्रोजेक्ट्स जो आपने किए हुए हैं वो आपको मेंशन करना है। अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हो, जो भी अचीवमेंट्स आपकी है वो आप मेंशन कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप टीसीएस में अप्लाई कर रहे हो तो यू मेंशन कि आई एम वेरी गुड इन पाइथन लैंग्वेज, आई हैव डन दिस इंटर्नशिप इन पाइथन, आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट्स इन इंटर्नशिप। मीन्स जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, इंटर्नशिप किए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं, कितना नॉलेज रखते हो आप, वो सब चीजें आप इस क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हो, बिकॉज दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट द इंटरव्यूअर शुड नो अबाउट यू। ओके, तभी तो वो आपको सिलेक्ट कर पाएंगे कि यस, इसको वो सारे नॉलेज है, इसके पास वो सारे सर्टिफिकेट्स हैं, इसके पास वो ट्रेनिंग्स हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो वो चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। इसका डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, हाउ यू नीड टू टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एक बार आप चेकआउट जरूर कर लेना, आई गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, इसका आंसर आपका ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ट्राई टू गिव योर आंसर जस्ट विद इन 2 minutes, ओके, बट ट्राई टू इंक्लूड ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। ओके, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके इंटर्नशिप्स, आपके सर्टिफिकेशन कोर्सेज, ट्रेनिंग्स आपने कुछ ली हैं अगर रिलेटेड टू आईटी सेक्टर, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। Why should I hire you? Again, a very important question, and you need to prepare this answer in advance. Why a candidate? Because as an HR, हमारा यही रोल है, हम यही जज कर रहे हैं कि आप में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके लिए मैं आपको हायर करूं। So here you need to mention all your skills, your potentials, आपको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है, आपने किस इंटर्नशिप में किया हुआ है, आप कैसे मेरी कंपनी के लिए यूजफुल हो सकते हो। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्वेश्चंस अबाउट टीसीएस, टीसीएस के बारे में कंप्लीट रिसर्च कर लेना गाइस, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। व्हाई? बिकॉज टीसीएस अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट कंपनी, यू नीड टू गिव all the research about that company. Okay, I'll do one thing, I'll give you one more video on TCS also. मैंने पहले भी दिया हुआ है डिटेल TCS का, आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर, कंप्लीट प्लेलिस्ट है TCS प्रिपरेशन की, बिकॉज लास्ट 2 years से हम रिक्रूटमेंट में है गाइज, एंड हमारी कंपनी, हमारे सब्सक्राइबर्स काफी सारे हैं जो TCS में ज्वाइन किए हुए हैं। सो आपको चैनल पर सभी वीडियोस मिल जाएंगे, प्रिपरेशन वीडियोस एंड TCS का कंप्लीट रिसर्च वीडियो भी मिल जाएगा। मैं फिर से आपसे ट्राई करूंगी शेयर करने का, रिसेंट जो भी अपडेट्स हैं उसके साथ मैं TCS की कंप्लीट रिसर्च आपसे शेयर करूंगी। बिकॉज जब भी आप किसी कंपनी के इंटरव्यू देने चाहते हो, यू हैव टू डू कंप्लीट रिसर्च अबाउट दैट कंपनी। ओके, उनके लेटेस्ट अचीवमेंट्स क्या हैं, उनके कंपटीटर्स कौन है, उनके फाउंडर्स, सीईओज, ऑल इंपॉर्टेंट पीपल कौन है, वो सब आपको पता होना चाहिए। देन व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, TCS के कंपटीटर्स कौन है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपकी वीकनेस कौन सी है एंड हाउ यू ओवरकम देम। How do you feel working night shifts and overtime? Would you be able to relocate? What are your goals? What are your 5 years goals? And can you work under pressure? Can you work under team? Are you a team player? Okay, examples or incidents from your life. Agar aap bolte ho, I am a good team player, I can handle a team nicely. So they're going to ask you, give me some example or incidents from your real life. Okay, are you willing to relocate? Situation based questions बहुत होते हैं आजकल, they'll give you any situation कि आप कंपनी में हो, आपके मैनेजर ने आपसे ये वर्क बोला है बट आप उसके अगेंस्ट में हो, बस इस तरह के कुछ सिचुएशंस वो लोग आपको देते हैं एंड उसके बेसिस पर आपको आंसर देना होता है, जस्ट टू चेक योर थॉट प्रोसेस, वो आपसे ये क्वेश्चन करते हैं। ओके, साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, सिचुएशंस आपको दी जाएंगी कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपकी टीम में कोई एक बंदा है जो वर्क नहीं कर पा रहा है, तो क्या आप उसकी हेल्प करोगे, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। आई विल ट्राई टू शेयर ऑल दोस क्वेश्चंस एज वेल विथ यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। देन फाउंडर्स एंड सीईओज ऑफ TCS मींस जो भी इंपॉर्टेंट पीपल हैं TCS के, वो आपको पता होना चाहिए। टॉप रिसेंट अचीवमेंट्स क्या हैं आपके, आपने कुछ रिसेंट में कोई अचीवमेंट्स किए हो तो वो बताओ। लॉकडाउन के पीरियड में आपने क्या किया था, व्हाई यू वांट टू जॉइन आईटी सेक्टर, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन गाइज। अगर आप किसी और ब्रांच को बिलोंग करते हो, इफ यू आर नॉट बिलोंग टू आईटी और CS ब्रांच, then for sure interviewer is going to ask you like why you want to join IT sector. If you belong to mechanical, then why you want to join IT sector. So you should have a very specific and correct answer for this question. For this also I'll share an answer with you, model answer. What if you got job in your core branch? Okay, अगर आपको आपकी कोर ब्रांच में जॉब मिल जाती है तो फिर आप क्या डिसाइड करोगे। इस तरह के बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं HR राउंड में, that I will try to give you all the questions in my next video.
अलॉन्ग विद दैट हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे और टेक्निकल क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, most frequently asked है. Along with it, I'm going to share questions from data structure, oops, टॉप क्वेश्चंस कौन से होते हैं, पाइथन के टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जावा के टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से होते हैं, इन सब का पर्टिकुलर वीडियो आपको मिल जाएगा. Along with that, interview experiences I'm going to share with you people of selected candidates. I am in coordination with so many candidates, guys. I told you I am into recruitment. So जो भी selected candidates हैं उनके इंटरव्यूज में उनसे क्या क्वेश्चंस किए गए थे, I used to talk to them. I used to gather all those information, and definitely I'm going to share with you people on this particular on this channel only, job for sure. Okay, how you need to answer HR questions, those tips also I'm going to share with you with their model answers. Okay, all technical questions, most frequently asked technical questions भी मैं आपसे share करूंगी. So guys, बहुत सारी information है मेरे पास जो मैं आपसे इस सीरीज में share करने वाली हूँ. Only thing that I want from your side is, guys, do support to the channel, do subscribe so that आपको सभी notification मिल पाए. एंड अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल हुआ है, थोड़ा भी मोटिवेशन मिला है, या कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिली है जो आपके लिए हेल्पफुल है टू क्रैक योर इंटरव्यू, प्लीज हिट दैट लाइक बटन. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट दिस इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल और नॉट. एंड अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप आंसर जानना चाहते हो, हाउ यू नीड टू आंसर दैट क्वेश्चन टू द एचआर, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो. कब आपके इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं, जब भी होते हैं आपको मेल आता है, आप मुझे डेफिनेटली बताना. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. मॉक इंटरव्यूज भी मैं आपके लिए अरेंज करूंगी, जस्ट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. टॉपमेट पर काफी सारे टाइम पर मैंने इन्फोसिस के लिए काफी सारे इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज किए हुए हैं. अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो आई डेफिनेटली अरेंज सम जूम मीटिंग्स एंड विल डू मॉक इंटरव्यू फॉर यू पीपल कंप्लीटली फ्री. ओके, आई जस्ट वांट टू हेल्प यू गाइस टू क्रैक योर इंटरव्यूज. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ बैचेस में, सो दैट सभी को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल पाए. जो कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए वो सबके पास जा पाए एंड हमारा हार्डवर्क थोड़ा सा वैल्यू मिल पाए. ठीक है, मोटिवेशन मिलता है गाइस अगर आप चैनल को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करके बताते हो कि यस इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल थी. वो हमें मोटिवेट करता है सो दैट आई क्रिएट मोर कंटेंट फॉर यू. ओके, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पर मिल जाएगी इस चैनल पर. सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रिपेयरिंग फॉर टीसीएस इंटरव्यूज. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू अपडेट. थैंक यू, बाय बाय.